Assalamu alaikum everybody. This is me, your instructor Sidra Roof. I'm here again with you with a new session of the same lesson. Lesson number 3, STEAM lesson outcomes and assessment part 2. I hope you people understand the previous lesson very well and you are now able to understand that what is for as of learning of assessment. So this is also connected with the assessment part. And as I said to you in the previous session that today we are going to learn about how to create rubrics for your student, that how to settle different categories like lower, middle and higher achiever students categories with the different kind of rubrics. So let's go. The course content. STEAM and authentic assessment, creating a plan for authentic assessment, student participating in assessment, question about the content, teamwork and collaboration question about technology and communication. Now, people, you will be thinking that why teamwork and collaboration are in a caps lock? Because this is the most important part for all of us, even though we are teachers, students, or we are working in any firm, the teamwork and collaboration is the most essential essence of your work, even though you can take it into your personal life as well. So let's start. This is what you people will be able to understand that I want you people to able. STEM authentic assessment, creating a plan for authentic assessment, student practicing, question about content knowledge, teamwork collaboration, question about technology and communication. Let's talk about STEAM and authentic assessment. What do you think about how the authentic assessment should be? How should be the authentic assessment look like? So pause the video here, write something that what you people think that authentic assessment should be, and write 2 to 3 lines only, and then resume the video and watch it again. I'm very happy that you people are back, and now I'm super excited that you people are already written some super excellent points regarding authentic assessment. So let's start. The success of this process of student learning, discovery, and reflection depend on the authentic, well-designed assessment. As we studied in the previous session that how to design, how you can make the assessment work for your student. The term authentic assessment refer to evaluation that consider not only the topic, also extra abilities including creativity, teamwork, problem solving and invention. लाइक आई सेड जो आप लोगों का प्रीवियस असेसमेंट था, जो मैंने आपको प्रीवियस एक्टिविटी दी थी, उसमें अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो ये अथेंटिक असेसमेंट की टर्म यूज हुई थी। मैंने आप लोगों को सिर्फ आपका असेसमेंट इवैल्यूएशन नहीं दिया था, मैंने आप लोगों को उसमें डिफरेंट क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इन्वेंशन के पार्ट्स भी दिए थे, जिसे मैंने मोड्स ऑफ लर्निंग में कन्वर्ट कर दिया था। In order to develop higher order thinking skill, kids need to be pushed to think critically and critically in STEAM activities. यानी आप लोगों ने अपने बच्चों को अगर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से डेवलप करना है, उनको हायर ऑर्डर थिंकर बनाना है, then you should always make and push them towards the critical thinking and creative activities of STEAM. These skills include questioning, analyzing, evaluating, extrapolating their plans, finding and ideas. यानी कि आपने अपने बच्चे को किस किस कैटेगरी में पुश करना है कि आप उसे क्वेश्चनिंग के जरिए भी, एनालाइज भी, इवेल्युएटिंग भी, एक्स्ट्रा प्लान भी, उनको फाइंडिंग्स भी और उनको आइडियाज भी, ये सब आपने उनको एक बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट माइंड के साथ उनके साथ चलना है और उनके लिए अथेंटिक असेसमेंट प्रिपेयर करना है। क्रिएटिंग अ प्लान फॉर अथेंटिक असेसमेंट, प्लीज इसको आपने बहुत बहुत गौर से देखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द क्वांटिटी एंड कैलिबर ऑफ द रिसर्च, आपने ये देखना है कि आप किस ग्रेड लेवल के लिए रिसर्च कर रहे हैं और उसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए और क्या कैलिबर होना चाहिए अपनी रिसर्च का। यानी क्या जो आप एक क्वेश्चन या आप एक एक्टिविटी सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो बच्चा इस एज ग्रुप या इस ग्रेड लेवल का है कि वो ये कर पाएगा।
या उसको इससे इनहांस चाहिए यानी एडवांस चाहिए या इससे लो चाहिए. एज आई सेड, LAHAMA should be in your mind and importantly your grade level and the age group. Student materials such as their storyboards, preliminary writing and project vision. यानी आपने ये चीजें मटेरियल प्रिपेयर करनी है, उनके स्टोरी बोर्ड्स हो सकते हैं, उनके राइटिंग और प्रोजेक्ट विजन हो सकते हैं. कम्युनिकेशन रिलेटेड पार्टिसिपेंट सच एज ग्रुप वर्क. आपने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक पार्टिसिपेशन ग्रुप जरूर बनाना है, यानी उनकी कोलैबोरेशन रहे, क्योंकि जितने माइंड्स होते हैं उतने आइडियाज होते हैं, उतनी क्लियर डिस्कशन में बंदा उसको समझता है, एज ए स्टूडेंट भी, एज ए वर्कर भी, एज ए टीचर भी. डायलॉग, रिसोर्सेज एंड आइडिया शेयरिंग, कोऑपरेटिंग एंड टीम वर्क. जो मैंने आपसे कहा, वो डायलॉग्स करेंगे, वो रिसोर्सेज होंगी उनके पास आइडिया शेयरिंग होंगी, उनके कोऑपरेशन होंगे और वो एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे. Please implement these type of authentic assessment in your classroom to see the difference between you and the other classes. Now let's examine each of the three basic type of evaluation utilized during the teaching and learning cycle. STEAM lesson assessment method and example. First is diagnostic. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरीके से कौन सा असेसमेंट कब लेना है बच्चों से, इन क्लास, आउट क्लास, ड्यूरिंग क्लास, समर टाइम, समर ब्रेक और फाइनल्स. ये सब आपने इस चार्ट को जब आपने समझ लिया, इट मीन्स यू आर on the higher level of teaching now. Used to identify current knowledge or misconception about a topic. यानी आपने उनकी डायग्नोस क्या करनी है कि आपके बच्चे को क्या आइडेंटिफिकेशन करंट नॉलेज है या वो अपने टॉपिक को लेके कितना मिसगाइडेड है. गुड फॉर प्री एंड पोस्ट असेसमेंट, यानी असेसमेंट से पहले असेसमेंट यानी प्री असेसमेंट और एक असेसमेंट के बाद आपने अपना जब देख लिया कि बच्चे कहाँ स्टैंड करने, तो आपने उसमें करना है. उसमें करना क्या है? प्री एंड पोस्ट टेस्ट, सेल्फ असेसमेंट, डिस्कशन बोर्ड रिस्पॉन्सेज, एग्जिट एंड एंट्री टिकट. ये क्या होता है कि जब आपने कोई टॉपिक दिया, इसके बारे में भी हम डिटेल बात करेंगे. इंटरव्यूज यानी आप उनसे डायलॉग्स करेंगे. ऑब्जर्वेशन एंड पोलिंग, ये हो गया आपका प्री यानी असेसमेंट लेने से पहले असेसमेंट, और असेसमेंट के बाद एक असेसमेंट. सिंपली एक वर्बल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आप इसे एक पेपर बनाएं, प्रॉपर टाइप करें, नहीं, आप बोर्ड पे भी कर सकते हैं. एंड formative used to provide feedback during the instructional process, good for viewing growth over time. यानी फॉर्मेटिव आप अपनी क्लास में किसी भी लेक्चर के दौरान किसी भी बच्चे के साथ ये आप कर सकते हैं. इसकी एग्जाम्पल क्या? आप स्टूडेंट को ऑब्जर्व करेंगे, उनका होमवर्क देखेंगे, उनके रिफ्लेक्शन जर्नल देखेंगे या स्केचबुक जिसे कह लें, उनके डिस्कशन देखेंगे, स्टूडेंट टीचर कॉन्फ्रेंस होगी, पेयर रिव्यूज होंगे, इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन होंगी, पोर्टफोलियोज होंगे, यानी उनका वर्क जो भी वो वीकली करते हैं और आप उसे अगर सॉर्ट आउट करती हैं तो अपने पास रखती हैं. प्रोजेक्ट फेज से सबमिटेड ओवर टाइम, थिंक पेयर शेयर, विजुअल थिंकिंग स्ट्रैटेजी एंड क्रिटिक्स. क्रिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपसे कहा कि अपने बच्चे को क्रिटिक करें लेकिन इन अ वेरी पॉजिटिव वे. क्रिटिक्स के भी बहुत सारे वैल्यूएबल्स होते हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे. Summative, this is the most important. Important तो वैसे सभी हैं, but this is the higher term of the assessment. Used to sum up learning at the end of the instructional process. This is good for assessing mastery, performance, production level. यानी जब आपका सेशन खत्म हो रहा है या आपकी क्लास खत्म हो रही है या आपका टॉपिक खत्म हो रहा है या आपकी फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, तब आप इस चीज को यूज करेंगे. हाई स्टेक टेस्ट, मल्टीपल चॉइसेस, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियोज, परफॉर्मेंसेस, rubrics, टीचर क्रिएटेड टेस्ट, essay and capstone projects. अब इनमें टीचर क्रिएटेड टेस्ट यूज होता है जब हम बच्चे के साथ ये काम करते हैं और इनको उस तरीके से जैसे हमारा फाइनल एग्जाम्स होता है या मंथली टेस्ट होता है, ये सब हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाते हैं. तो इसमें आपने देखना, आपने उन्हें चेकलिस्ट देनी है, आपने उन्हें मल्टीपल क्वेश्चन देने हैं, आपने उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी है या जो भी आपकी इसमें लिस्ट में है. सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आई होप कि आप लोग की रिकॉर्ड आपको पास होगी, अभी भी सुन सकते हैं. बट ये जो 3 STEAM लेसन असेसमेंट मेथड्स हैं,
और इनकी एग्जाम्पल्स हैं। ये अगर आप लोगों को समझ आ जाती हैं और आप इस पे काम करते हैं तो ट्रस्ट मी, आप लोग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर की कैटेगरी में जरूर आएंगे इंशाल्लाह। Student participating in assessment. This is very important. Participating in project assessment with student increase motivation. यानी अगर एक बच्चा आपके पास है और एक आपने ग्रुप बनाया और वो चाहता है कि मुझे पर्टिकुलर ग्रुप में आप ऐड कर दीजिए बिकॉज आई वांटेड टू डू दैट प्रोजेक्ट, आप बच्चे से पूछेंगे व्हाई यू वांटेड टू डू दैट प्रोजेक्ट, वो अपनी आइडिया शेयर करेगा दैट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस और दैट। सो आप उनको वहीं रखेंगे ताकि उनकी मोटिवेशन हो, उनकी enhance होगी मेटा कॉग्निशन एंड encourage लर्निंग विद द पर्पस। इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया ऑल अराउंड। अगर आप देखिए कि जब उनका पर्पस बन जाएगा ना पढ़ाई का कि यस हम कुछ कर रहे हैं तो इसका हमें फीडबैक मिलता है, टीचर हमें एक्नॉलेज करती हैं, टीचर हमारी बात सुनती हैं, टीचर हमें पर्पस देती हैं, तो ये आप अपनी क्लास में खुद एक 360 का चेंज देखेंगे। When asked to evaluate their own performances, students develop the ability to identify the strength and fault. जब आप बच्चे को सेल्फ असेसमेंट सेल्फ इवेल्युएट करने को कह देते हैं ना कि आप अपने आप को बताइए आपकी परफॉर्मेंस कहाँ तक ठीक थी, आपको क्या लगता है, तो बच्चे में अपनी स्ट्रेंथ एंड फॉल, जिसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता आइडेंटिफिकेशन आ जाती है और वो इस चीज पे एक मास्टर कर लेता है, अपनी मास्टरी कर लेता है कि यस आई नो दिस पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन आई वाज वेरी गुड, हियर आई वाज लैकिंग। और आपने पहले अश्योर करना है कि आप उन्हें इस चीज में डीमोटिवेट नहीं कर रही हैं, आप उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगी ताकि बच्चे को पता चल जाए यस टीचर इज नॉट हियर टू स्नब मी, टीचर विल हेल्प मी टू ओवरकम माई फॉल्ट्स एंड weaknesses. They were able to choose where to concentrate their effort in order to get the best result. जब ये सारी चीजें होने लगेंगी ना क्लास में, स्टूडेंट खुद से वो आपकी हेल्प करेगा, यस मैम आई एम एबल टू डू दैट थिंग इन द नेक्स्ट session, and then please if I need your help then please help me, like this please walk as a facilitator throughout the class। आप क्लास में कुछ भी पढ़ा रही हैं, just walk as a facilitator। Now next is the following are some excellent illustration of the real evaluation question for students, question concerning subject matter expertise। यानी मैं ये वो क्वेश्चन है जो आपने बच्चों से पूछने हैं जो HA हैं, हायर अचीवर्स हैं, उनके साथ आप MA में भी यूज कर सकते हैं। So what did you find most fascinating about the project? यानी आप प्रोजेक्ट की जगह आप सेशन बोल सकते हैं, आप टॉपिक बोल सकती हैं, आप कोई एक पर्टिकुलर नेम ले सकती हैं, बच्चा आंसर करेगा, then ask why। And the next question, how much fresh information did you pick up while working on this project? जब बच्चा वर्क कर रहा है प्रोजेक्ट पे, इवन इट्स राइटिंग और वर्बल और मेकिंग मॉडल्स, एनीथिंग इट कैन बी, तो आपने बच्चे से सवाल करना है कि कौन सी फ्रेश इंफॉर्मेशन आपने पिक की काम करते हुए, मोर और लेस देन यू एंटिसिपेटेड डिड यू लर्न, आप इस तरह से सवाल करेंगी। व्हाट 3 लेसन्स स्टूड आउट एट द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड फैसिनेटिंग टू यू। यानी आप बच्चे से पूछेंगे जब आप ये कर रहे थे, आपने अपने इतने लेसन पढ़े, तो कौन से ऐसे 3 लेसन हैं जो आपको बहुत फैसिनेट किए और आपको सिग्निफिकेंट लगे। और पढ़ाते हुए प्रेजेंटेशन के वक्त आप उनसे पूछे व्हाट कॉट योर आईज, आपको क्या आई कैचिंग लगा व्हाइल स्टडीइंग, व्हाट एल्स अबाउट द सब्जेक्ट वुड यू लाइक टू नो। फिर आपने पूछना है कि इफ यू आर साइंस टीचर, एनी टीचर यू कैन बी, तो आप इस सब्जेक्ट के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। और जब बच्चा अगर आपको जवाब देता है ओके आप लिख लीजिए, अगर आपको उस वक्त नहीं पता तो आप ये नहीं कहेंगी मैं आपको कल देखकर बताती हूँ, नहीं, आप कहेंगी ऑल राइट टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग ऑफ दिस टॉपिक। आप लिख लें और रिसर्च कर कर आए और उन्हें बताएं। व्हाट यू हैव लर्न हाउ विल यू पुट इट टू यूज, आपने ये पूछना है, आपने सीख लिया, अब आप इसे यूज कैसे करेंगे। आई होप दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि अगर आप इस तरीके से सवाल करेंगे तो आपका और स्टूडेंट का बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। आप अपने लेसन प्लान में भी ये क्वेश्चन पुट कर सकती हैं ताकि आपको भी याद रहे, और अगर आपका लेसन प्लान कहीं जा रहा है तो वो भी बहुत फैसिनेट हो कि यस शी इज वर्किंग ऑन स्टूडेंट। Teamwork and collaboration questions, this is very important. How well did you and your team work together? जब आप ये बच्चे से सवाल करेंगे, अगर आप पूछेंगे आपने काम कैसा किया तो वो बताएगा यस मैंने बहुत अच्छा किया, इट वाज दिस एंड दैट। जब आप उसकी टीम के बारे में पूछेंगे ना, योर टीम,
अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी होगा ना तो उस बच्चे के माइंड से चला जाएगा ओके यस दिस इज व्हाट इट इज, टीम वर्क का क्या मतलब होता है, यानी मैं और मेरी टीम का काम पूछा जाएगा, मुझसे अकेले नहीं पूछा जाएगा. Okay, how did you find out? What would you act differently the next time? How did your efforts and deeds help you to team succeed? What aspect of the team was the most challenging? What made it best? ये सब सवाल जब आप करेंगी तो आपके बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और उन्हें पता चलेगा yes we are working and we are studying what we want to and why we are here in the school. They will know better. The question about technology and communication. How well did you and your team work? ये सारे क्वेश्चन आप टेक्नोलॉजी के थ्रू भी यूज कर सकते हैं. आप उनकी टेक्नोलॉजी में ये सब जब क्वेश्चन पुट करेंगे तो ये सारे सेम क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप इन सब क्वेश्चन में अपना पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का टॉपिक ऐड कर देंगे. Now, at the end, the reflective process include questions like these, and it's important for students to back up their statements with evidence. This evidence can take the form of project journal entries, draft and prototype, finished product, peer comments, and other proof of learning. ये आपके पास जब बच्चों का आता जाएगा, आप अपने पास इसे सेव करती जाएंगे, आप प्रोजेक्ट की पिक्चर ले लें, ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट ले लें, उस पर अपने कमेंट्स लिखें, बच्चों से पूछें, उनके कमेंट्स लिखें, उनकी क्या राय थी जब जवाब आपको दे रहे हैं, तो उनको लिखकर अपने पास रखें और ये एक पोर्टफोलियो जर्नल तैयार करें जो एट द एंड आप उनके पेरेंट को देंगे और प्रिंसिपल जब देखेंगी शी विल बी वेरी हैप्पी. So thank you so much everybody for joining in me today. So now before going to end this session, I would like to show you your next assignment. So as I said, we are going to start the rubrics. आप ये पढ़ लीजिए, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ. It's very easy. क्लासरूम इवैल्यूएशन रूब्रिक्स. सबसे पहले इमर्जिंग होते हैं लोअर अचीवर, डेवलपिंग सीखने वाले, प्रोफिशिएंट, मिडिल अचीवर, एग्जाम्पलरी यानी हायर अचीवर या उनसे बढ़कर. उनकी क्रिएटिविटी में आपने क्या सेट करना है, ये सारे एग्जाम्पल है. इनिशिएटिव, लर्निंग सबके अलग अलग हैं क्योंकि सबकी मेंटल थिंकिंग और उनकी एबिलिटी ऑफ लर्निंग डिफरेंट है. तो रूब्रिक्स आर हेल्पफुल, या पूरा पढ़ेंगे. द डिजायर्ड आउटकम ऑफ असाइनमेंट आउटलाइन इन अ रूब्रिक इंक्लूड, जो मैंने आप लोगों से पहले कहा था. आप व्हाट एग्जैक्टली द रूब्रिक इज आप ये देखेंगे. पहले ये आपके पास फॉर्म है, आप इसे प्रॉपर देखेंगे, आपने इसे फिल करना है. इधर आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल ऑफ रूब्रिक है. ऊपर आप पढ़ के एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन प्लीज कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा. इधर आपने अपने ही रूब्रिक्स पुट करने हैं, ठीक है. सारा कुछ इन डिटेल है, ये एग्जाम्पल है जिसे आप फोकस करेंगे. इंशाल्लाह ताला यू पीपल विल be able to understand it more clearly when we are going to the live session. So till then, thank you so much everybody. Allah Hafiz.